میں تو ڈوبا ہوا رہتا ہوں تیری یادوں میں. اب تسلی ہو گئی تمہیں؟ پلاننگ کر کے گئی ہے وہ، ورنہ وہ تمہارے آفس کیوں آتی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم حاشر؟ ہو سکتا ہے اس نے یہ سب کچھ کسی مجبوری کے عالم میں کیا. ملیا سمجھدار ہے، اس نے یہ اسٹیپ کسی مجبوری کے تحت ہی اٹھایا ہوگا. رہنے دو، اس مجبوری کی وضاحت میں کرتا ہوں تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے. ویسے کچھ اندازہ ہے کہاں جا سکتی ہے؟ دیکھو بہزاد، سیدھی بات ہے، اس کی بہن ہے، اسے تو برا لگے گا لیکن حالات سب سمجھا رہے ہیں. تم سے شادی سے انکار اور پھر اس طرح اچانک سے چلے جانا تو صرف ایک بات کی طرف اشارہ ہے. کیا مطلب؟ کیا اشارہ؟ اس کی منزل ہی کوئی اور تھا، ہمیں بیوقوف بنا رہی تھی وہ. اتنی بڑی بات ہوگی اور تم نے مجھے نہیں بتا. پریشانی میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، میں کروں کیا؟ تمہاری پریشانی صرف تمہاری نہیں ہے نمرا. ویسے کیا دیکھ رہی ہے؟ امی کہتی تھی کہ میری پریشانیاں میری کیسے ہو سکتی ہیں، انہوں نے مجھے کبھی پریشان ہونے ہی نہیں دیا، اور ابھی مجھے تو وہ تمہیں اب بھی پریشان نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. تم دیکھنا کوئی نہ کوئی کلو بہت جلد مل جائے گا. میں آپ کو یہی کہہ کے بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اب نہ میرا دل نہیں مان رہا. مجھے لگ رہا ہے جیسے اس گھر میں مجھے وہ اسی لیے لے کر آئی تاکہ وہ خود یہاں سے چلی جائے مجھے چھوڑ کے. چلو اگر مان لیتے ہیں ایسا ہے بھی، تو انہوں نے جانا کہاں تھا؟ یہی سوال تو مجھے لاجواب کا ہے. روشنی کا قوم ایک قدیم گاؤں کے بیچوں بیچ ایک عجیب گاؤں تھا. دن کے وقت وہ عام کنویں کی طرح دکھائی دیتا، مگر ہر مکمل چند کی رات اس میں سے نرم سنہری روشنی نکلتی. لوگ کہتے تھے کہ اس روشنی کے نیچے ایک ایسا راز چھپا ہے جو صرف نیک نیت انسان پر ظاہر ہوتا ہے. گاؤں میں رہنے والا 16 سالہ دانیال ہمیشہ اس کنویں کی حقیقت جاننا چاہتا تھا. ایک رات وہ خاموشی سے کنویں کے پاس پہنچ گیا. جیسے ہی وہ قریب پہنچا اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. ایک بوڑھی عورت کا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا تھا. دانیال نے اپنا گھڑا اسے دے دیا اور خود خالی ہاتھ رہ گیا. وہ دوبارہ کنویں کے پاس آیا تو روشنی پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی. اچانک کنویں کی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ نمودار ہوا. دروازے کے اندر ایک مختصر سی سیڑھی تھی جو ایک پرانے کمرے تک جاتی تھی. وہاں نہ سونا تھا نہ ہیرے، بلکہ ایک پتھر کی تختی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، جو دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے، زندگی اس کی امید کبھی خشک نہیں ہونے دیتی. اسی کمرے میں گاؤں کے پرانے چشموں کا نقشہ بھی محفوظ تھا جو برسوں پہلے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. دانیال نے نقشہ گاؤں والوں کو دے دیا. سب نے مل کر پرانے چشمے دوبارہ کھولے، نہریں صاف کیں اور پانی کی قلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. کئی سال بعد جب دانیال سے پوچھا گیا کہ کنویں میں اسے کیا ملا تھا تو اس نے مسکرا کر کہا، مجھے خزانہ نہیں ملا، مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اصل دولت وہ ہے جو سب کے کام آئے. سبق: جو انسان اپنی صلاحیت دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے وہی حقیقی کامیابی اور عزت حاصل کرتا ہے. روشنی کا قوم ایک قدیم گاؤں کے بیچوں بیچ ایک عجیب گاؤں تھا. دن کے وقت وہ عام کنویں کی طرح دکھائی دیتا، مگر ہر مکمل چند کی رات اس میں سے نرم سنہری روشنی نکلتی. لوگ کہتے تھے کہ اس روشنی کے نیچے ایک ایسا راز چھپا ہے جو صرف نیک نیت انسان پر ظاہر ہوتا ہے. گاؤں میں رہنے والا 16 سالہ دانیال ہمیشہ اس کنویں کی حقیقت جاننا چاہتا تھا. ایک رات وہ خاموشی سے کنویں کے پاس پہنچ گیا. جیسے ہی وہ قریب پہنچا اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. ایک بوڑھی عورت کا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا تھا. دانیال نے اپنا گھڑا اسے دے دیا اور خود خالی ہاتھ رہ گیا. وہ دوبارہ کنویں کے پاس آیا تو روشنی پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی. اچانک کنویں کی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ نمودار ہوا. دروازے کے اندر ایک مختصر سی سیڑھی تھی جو ایک پرانے کمرے تک جاتی تھی. وہاں نہ سونا تھا نہ ہیرے، بلکہ ایک پتھر کی تختی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، جو دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے، زندگی اس کی امید کبھی خشک نہیں ہونے دیتی. اسی کمرے میں گاؤں کے پرانے چشموں کا نقشہ بھی محفوظ تھا جو برسوں پہلے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. دانیال نے نقشہ گاؤں والوں کو دے دیا. سب نے مل کر پرانے چشمے دوبارہ کھولے، نہریں صاف کیں اور پانی کی قلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. کئی سال بعد جب دانیال سے پوچھا گیا کہ کنویں میں اسے کیا ملا تھا تو اس نے مسکرا کر کہا، مجھے خزانہ نہیں ملا، مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اصل دولت وہ ہے جو سب کے کام آئے.
सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौन। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौन था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौन। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौन था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौन। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौन था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए।
सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस मुनि की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से एक मुनि के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा मुनि के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक मुनि की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि मुनि उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस मुनि की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से एक मुनि के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा मुनि के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक मुनि की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि मुनि उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस मुनि की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से एक मुनि के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा मुनि के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक मुनि की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि मुनि उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए।
सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आम कुएं की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आम कुएं की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए।
सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आम कुएं की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आम कुएं की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए।
सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए।
सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौन। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौन था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस मुनि की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से एक मुनि के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा मुनि के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक मुनि की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि मुनि उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौन। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौन था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस मुनि की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से एक मुनि के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा मुनि के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक मुनि की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि मुनि उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौन। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौन था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस मुनि की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से एक मुनि के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा मुनि के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक मुनि की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि मुनि उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए।
सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आमदनी की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। दानियाल ने नक्शा गांव वालों को दे दिया। सबने मिलकर पुराने चश्मे दोबारा खोले, नहरें साफ की और पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई साल बाद जब दानियाल से पूछा गया कि कुएं में उसे क्या मिला था तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ख़जाना नहीं मिला, मुझे ये समझ आ गई कि असल दौलत वो है जो सबके काम आए। सबक, जो इंसान अपनी सलाहियत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकी कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। रोशनी का कौम। एक कदीम गांव के बीच एक अजीब कौम था। दिन के वक्त वो आम कुएं की तरह दिखाई देता, मगर हर मुकम्मल चंद की रात इसमें से नरम सुनहरी रोशनी निकलती। लोग कहते थे कि इस रोशनी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक नीयत इंसान पर जाहिर होता है। गांव में रहने वाला 16 साला दानियाल हमेशा इस कुएं की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो खामोशी से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत का पानी का घड़ा टूट गया था। दानियाल ने अपना घड़ा उसे दे दिया और खुद खाली हाथ रह गया। वो दोबारा कुएं के पास आया तो रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। अचानक कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के अंदर एक मुख्तसर सी सीढ़ी थी जो एक पुराने कमरे तक जाती थी। वह न सोना था न हीरे, बल्कि एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, जिंदगी इसकी उम्मीद कभी खुश्क नहीं होने देती। उसी कमरे में गांव के पुराने चश्मों का नक्शा भी महफूज था जो बरसों पहले लोगों की